ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لاہور میں آج بڑا مارکا ہوا ہے، پنجاب میں سب سے زیادہ سیٹیں تھیں جن کے اوپر آج ضمنی انتخاب ہوا ہے۔ ووٹنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے، اوورآل کیا صورتحال رہی؟ سلیم بتائیے گا۔ ہمیں واقعات بھی ایسے تشدد کے دیکھنے میں آئے جہاں پر مختلف سیاسی پارٹیوں کی جانب سے ایک دوسرے پر تشدد کیا گیا اور افسوسناک واقعات بھی پیش آئے، ایک شخص جاں بحق بھی ہوا ہے۔ اوورآل کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو کہ آج ووٹنگ کیسی رہی؟ کافی حد تک بہتر رہی ہے، لیکن ایک افسوسناک واقعہ جو ہے وہ ناروال میں پیش آیا ہے، جہاں پر مسلم لیگ نون کا جو ایک کارکن ووٹر جس کا نام یوسف بتایا جاتا ہے وہ جاں بحق ہو گیا، اور اس کی ابھی تحقیقات جو ہیں وہ جاری ہیں۔ تاہم جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے جو مخالف امیدوار ہیں سنی اتحاد کونسل سے جن کا تعلق تھا، ان کی طرف سے جو ہے وہ حملہ کر کے ان کے ووٹر کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور وہ جاں بحق ہو گیا۔ اور اسی طرح لاہور میں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا انجینئرنگ یونیورسٹی کے قریب حلقہ 119 میں، جہاں پر جو ہے جو دونوں پارٹیاں یعنی مسلم لیگ نون اور سنی اتحاد کونسل کے جو کارکنان ہیں وہ آپس میں ان کی ہاتھا پائی ہوئی تھی اور 4 افراد کو گرفتار بھی کیا تھا، لیکن کوئی زیادہ یہاں پر مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ پولیس نے بیچ بچاؤ کروایا تھا اور معاملے کو ختم کروا دیا گیا تھا۔ اور یہ واقعہ آیا تھا پولنگ اسٹیشن کے باہر جو پولنگ کیمپ بنے ہوتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے، وہاں پر، اور اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ بہتر ہو گیا تھا۔ اور 149 میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا، آپ نے بھی، آپ کے نالج میں بھی ڈیفینیٹلی ہوگا، فارم 47 کے حوالے سے وہ تھوڑا سا ایک ایسی بات تھی جس کو میرے خیال میں ریز بھی کیا گیا لیکن وہ سیٹل ہو گیا۔ اس وقت اس حوالے سے، اس پولنگ سٹیشن کے حوالے سے کیا خبریں آ رہی ہیں؟ دیکھیے وہ ایسے ایک جو ہے نا وہ انتہائی تشویشناک واقعہ تھا، اور یہ ہمارے رپورٹر جو ہیں وہ سعید بلوچ صاحب انہوں نے اس کو رپورٹ کیا تھا۔ اور صورتحال یہ تھی کہ وہاں پر جو 2 پولنگ ایجنٹ بیٹھی ہوئی تھی ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم سے فارم 45 جو ہے وہ قبل از وقت یعنی تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے کے قریب جو ہے وہ دستخط کروا لیے گئے تھے، اور جو وہاں پر پریزائڈنگ افیسر تھے اقبال جنہوں نے اپنا نام بتایا، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے یہ سائن اس لیے کروائے ہیں کہ آخر میں جو ہے وہ ٹائم کم ہوتا ہے، جبکہ جو سنی اتحاد کونسل کے وہاں پر جو ریپرزینٹیو تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تمام غیر قانونی اقدام ہے، کیونکہ فارم 45 تو سائن ہی اس وقت کروایا جاتا ہے جب گنتی مکمل ہو چکی ہوتی ہے، اور گنتی کے بعد فارم 45 کے اوپر جو ہے ہر امیدوار کے آگے جو حاصل کردہ ووٹ ہے وہ شامل کر دیے جاتے ہیں، پھر دستخط ہوتے ہیں۔ اور اس کی جو تصدیق ہے وہ پریزائڈنگ وہ جو پولنگ ایجنٹ تھی انہوں نے بھی کی، اور اقبال جو پریزائڈنگ افیسر تھے انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ ہاں میں نے یہ جو ہے دستخط کروا لیے تھے۔ لیکن جب ہمارے رپورٹر اس چیز کو عوام کے سامنے لے کر آ رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے، تو اسی وقت جو ہے وہ انہوں نے وہ فارم جو ہے وہ پھاڑ دیے تھے اور کہا تھا کہ اب یہ جو ہے فارم لیکن یہ آن ریکارڈ ہے چیز۔ سلیم شیخ، کیا آپ اس میں بتا سکتے ہیں کہ اس پہ کوئی قانونی کارروائی ہوگی یا نہیں؟ جی دیکھیں 2 قسم کی قانونی کارروائی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ صوبائی الیکشن کمیشن پنجاب سے جو ہے وہ اس حوالے سے وضاحت طلب کی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ جو فارم 45 پر قبل از وقت دستخط کروائے گئے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ اگر یہ بات حقیقت ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ رپورٹ طلب کی گئی ہے کہ آئیں اور آ کر جو ہے وہ بتائیں کہ کیا صورتحال ہوئی ہے۔ اور اس حوالے سے جو ہے صوبائی الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی ظاہر ہے وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ یہ ہم نے معاملہ تقریباً 12 بجے سے جو ہے وہ عوام کے سامنے لے کر آئے تھے، لیکن یہ معاملہ تقریباً کوئی 11:15 بجے کا تھا، اور کیونکہ بلیٹن 12 بجے شروع ہوتا ہے اس وقت ہم نے لوگوں کو دکھایا تھا۔ تو اس کے بعد سے ظاہر ہے چیف الیکشن کمشنر کے آفس میں بھی یہ سکرینیں لگی ہوئی ہیں، اور جو صوبائی الیکشن کمیشن پنجاب ہے ظاہر سلیم مانیٹرنگ تو ہو رہی ہوگی اور اس کے اوپر مفصل رپورٹ بھی پیش کی جائے گی، اور پھر وہ اپنا لاہے عمل بھی طے کریں گے کہ اس پہ کیا کرنا ہے۔ لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ابتدائی طور پر ہوا ہی کیوں ہے؟ کیونکہ انتخابی جو عملہ ہوتا ہے یا پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں ان کی پہلے سے تربیت کی جاتی ہے کہ کس طرح سے پورے پروسیس کو لے کے چلنا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ انہوں نے پہلے سے ہی فارم 45 سائن کروا لیے اور پولنگ ایجنٹس نے سائن بھی کر دیے؟ یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ جی بالکل، یہ واقعی عجیب سی بات لگتی ہے، کیونکہ وہ جو ٹریننگ ہے وہ پراپر شاید نہیں ہوئی ہوگی، اور پولنگ ایجنٹس جو 2 خواتین بیٹھی تھیں انہوں نے بھی آن کیمرہ اس بات کی تصدیق کی کہ ہم سے جو ہے نا وہ
जो फॉर्म है वो दस्तखत करवा लिए गए थे, और उसकी वजह जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ये बताई थी कि जो है ना वक्त वो कम होता है इसलिए करवाए हैं। और फिर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे इकबाल, उन्होंने हमारे साथ जो हमारे नुमाइंदे थे सईद बलोच साहब, उनके साथ भी जो है ऑन कैमरा इस बात की तस्दीक की, वो मैंने दस्तखत करवा लिए थे, लेकिन अब वो फॉर्म मैंने नहीं रखे। जब उनसे पूछा कि आपने गैस खुद करवाए हैं या किसी अथॉरिटी ने कहा था या कोई सियासी दबाव था, तो इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया था कि वो फॉर्म उन्होंने किस तरह दस्तखत करवाए हैं। ताहम जो ये मामला जो है वो उस वक्त तो ख़त्म हो गया था, लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में ये मामला आ चुका है, तो उन्होंने सूबाई इलेक्शन कमीशन से भी इस बात की वजाहत तलब की। अब देखना ये है कि जो सूबाई इलेक्शन एक और कमीशन है वो इम्पॉर्टेंट इस चीज़ हवाले ये से है कि जब हमारे नुमाइंदे उनसे बात कर रहे थे सईद बलोच, तो उन्हें ये बताया गया कि ये सिर्फ एक फॉर्म 45 नहीं है जिसे साइन कराया गया था, मजमूई तौर पर 8 ऐसे फॉर्म थे जिन्हें साइन करवाया गया था। एक फॉर्म का तो उन्होंने बताया कि उसे फाड़ के फेंक दिया गया है और वो नाकाबिले इस्तेमाल होगा। तो सवाल फिर वही पैदा होता है कि जो बाकी फॉर्म रह गए हैं उन्हें क्या बाद में यूज़ किया जाएगा, और ओवरऑल अगर इस सूरत हाल को हम देखें तो क्या इसमें लिटिगेशन बनती है? क्या इस पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा हो गया वो रोक लिया जाएगा, विदहेल्ड किया जाएगा, या नल एंड वॉइड हो जाएगा? क्या इस पे कानूनी चाराजोई हो सकती है? इस हवाले से तो जो है वो एक सूरत हाल ये हो सकती है कि इलेक्शन कमीशन या सूबाई इलेक्शन कमीशन जो है वो इस हवाले से कोई वजाहती बयान जारी करें, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन का प्रोसेस शुरू था और इलेक्शन अब से थोड़ी देर पहले जो है वो ख़त्म हुआ है। क्योंकि इसमें जो है वो जो बैलेट बॉक्स हैं या बैलेट पेपर के हवाले से कोई बेज़ाब्तगी अभी तक सामने नहीं आई थी कि कोई किसी ने कहा हो कि कोई जो है जाली वोट डाला गया है या ज़्यादा वोट डाले गए हैं, ये वाली बात नहीं थी आई। तो अगर इलेक्शन कमीशन पंजाब या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो कोई डायरेक्शन जारी कर दे कि इस स्टेशन से जो है वो ये सारी सूरत हाल सामने आई थी, तो लिहाजा इस वक्त जो है वो सारे के सारे जो फॉर्म 45 है वो सामने। सलीम हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, चूंकि अब इस पोलिंग स्टेशन का हम जिक्र कर ही रहे हैं और सईद बलोच जी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि बाद में हुआ क्या। सईद बलोच, आप वहां पहुंचे, आपने खुद देखा कि किस तरह से फॉर्म 47 को पहले ही साइन करवा लिया गया था। एक नहीं, एक से ज्यादा फॉर्म्स थे जिन पर साइन करवाए गए थे, और उसके बाद फाड़ा जो हमने देखा है, सिर्फ एक ही पेपर को जो है वो नाकाबिले इस्तेमाल बनाया गया था। बाकी जो फॉर्म 47 थे उनके साथ क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ वहां पर पोलिंग के साथ? जी, मैं जिस वक्त वहाँ पे मौजूद था उस पोलिंग स्टेशन पर, तो वहाँ पर झगड़ा यही था कि सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद के जो उम्मीदवार हैं उनके सपोर्टर्स वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कहा कि जी हमें ये शिकायत मिली है कि यहाँ पे फॉर्म 45 जो है ना हमारी पोलिंग एजेंट से पहले ही सुबह के वक्त ही साइन करवा लिया गया था। जब हम वहाँ पर पहुँचे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं उनके से बात हुई तो उन्होंने कंसीड किया, उन्होंने कहा कि हाँ मैंने फॉर्म 45 पे जो है वो सिग्नेचर लिए थे पोलिंग एजेंट्स जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की एजेंट्स हैं उनसे, लेकिन उसकी वजह उन्होंने जब हमने पूछी तो उन्होंने ये कहा कि जी हमने वक्त बचाने के लिए ये किया था, क्योंकि शाम के वक्त काउंटिंग हो रही होती है और उस वक्त और बहुत सारा प्रोसेस चल रहा होता है तो वक्त कम होता है, तो इसलिए हमने कहा कि सामने ही हम करवा लें, लेकिन पहले ही ये सिग्नेचर जो हैं ये करवा लिए जाएँ। लेकिन इस पर PTI के और जो सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद के जो सपोर्टर्स थे वो वहाँ पे जमा हो गए और उन्होंने कहा कि इसके ख़िलाफ़ पुलिस एक्शन होना चाहिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को गिरफ़्तार किया जाए, और हम उन्होंने कहा कि जी इस पर कानूनी चाराजोई जो है वो भी करेंगे। एक वक्त पे तो कुछ लोगों ने वहाँ पे धरना भी दे दिया, उन्होंने कहा कि जब तक के एक्शन नहीं होगा उस वक्त तक बड़ी कंप्लेन है। असूली तौर पर लगता ऐसा है कि इस पूरे मामले को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे को फौरी तौर पर पहुंचना चाहिए था और उसके बाद एक मीडिया ब्रीफ दे देनी चाहिए थी कि आया इस पोलिंग स्टेशन का जहां पर ये हुआ यानी PP 149 पर उसका फ्यूचर क्या है। अब क्या ऐसा कुछ हुआ? जी, उसके बाद अभी उसका यही हुआ होगा कि जहाँ जहाँ ये बात पहुँची होगी और अगर कुछ और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इस तरह का कोई अमल करना चाह रहे होंगे तो वो रुक गया होगा। बल्कि जिस पोलिंग स्टेशन पे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तो यहाँ पे भी मुझे पता चला है कि यहाँ पे भी ये एक तजवीज़ आई थी कि जी वक्त बचाने के लिए यहाँ पे वो कर दिए जाएँ सिग्नेचर, लेकिन वो फिर जब ख़बरें चली तो वो ये नहीं हुआ। लेकिन ऐसी कोई हमें कंप्लेंट यहाँ पे नहीं मिली, ये कुछ लोगों की का ख्याल था। लेकिन सईद बलोच, ये उजलत
जो है वो समझ से बालातर है। आप खुद भी रिपोर्ट कर रहे हैं, हम भी पूरे दिन यहाँ पर आपके साथ बैठकर बार बार पूछ रहे हैं कि वोटिंग का अमल जारी है, वोटर्स टर्न आउट क्या है। आपने 2 पोलिंग स्टेशन से खुद देखा, एक जगह पे 15%, एक जगह पे 10%, कई जगहों पर इससे भी कम वोटर्स टर्न आउट है। फिर इतनी उजलत क्यों, पहले से दस्तखत क्यों करवाने हैं जब ऑलरेडी काउंटिंग में भी मुझे नहीं लगता इतना वक्त लगेगा। यही तो बात है जहाँ से शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं कि वक्त की कमी का या इस तरह का तो मसला वहाँ पे होता है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो, वोटर्स का लाइनें लगी हों। लेकिन हमने सारा विज़िट किया है, जिस पोलिंग स्टेशन पे ये शिकायत आई थी कि फॉर्म 45 साइन करवाया गया है और वहाँ पे झगड़ा भी हुआ, वहाँ पे भी जो टर्न आउट था वो भी इंतहाई कम था। और जिस पोलिंग स्टेशन पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पे तो 10% और एक पोलिंग स्टेशन पे 15% रहा, और ये ख़ुद हमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने भी बताया। तो इसलिए उजलत की कोई वजह समझ में नहीं आती। लेकिन अगर हम ये बात मान भी लें थोड़ी देर के लिए कि जी उजलत के लिए और वक्त बचाने के लिए ये किया गया, जैसा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का भी क्लेम था, तो लेकिन वो उससे शुकुक शुबहात पैदा होते हैं कि भी ऐसी क्या जल्दी थी कि आपने सुबह ही करवा दी और जब गैर कानूनी ना, मैं उसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकती। एग्जैक्टली पॉइंट ही ये है कि उजलत किस बात की, जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक डेजिग्नेटेड टाइम फ्रेम दिया गया है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर पोलिंग होनी है और एक ज़ाब्ता इखलाक है, उसके बाद ही आपने फॉर्म 45 साइन करवाना है और बैलेट बॉक्सेस खोलेंगे। फिर उसके बाद जो काउंटिंग होगी, काउंटिंग के मरहले के बाद फॉर्म 45 पे जो इंदराज किया जाएगा डाटा का, उसी के बाद उसको साइन करवाना है तमाम पोलिंग एजेंट से। तो ये बिल्कुल अजीब सी बात लगती है कि प्रिजाइडिंग अफसर की जानिब से पहले से ही फॉर्म 45 को साइन करवा लिया गया पोलिंग एजेंट्स की जानिब से, और इंटरेस्टिंगली पोलिंग एजेंट्स ने भी फॉर्म 45 साइन कर दिया। सईद बलोच ने बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की, अगर हमारे प्रोड्यूसर वो दोबारा दिखा सकें। मीनवाइल हम सईद बलोच से ये जानना चाहेंगे कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं, क्या आपने उनसे बात की है कि उन्होंने क्यों साइन किए? मैंने बिल्कुल वो 2 ख़वातीन पोलिंग एजेंट्स जो है सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद की वहाँ पे जो मौजूद थी, जिन्होंने ये कंप्लेंट की, तो उनसे मैंने यही पूछा कि भाई आपने जब ये साइन किए तो आपको इसकी कोई वजह भी बताई गई होगी कि आपसे क्यों सिग्नेचर करवाए जा रहे हैं सुबह के वक्त में। तो उन्होंने कहा कि जी हमें ये कहा गया था कि ये हम वक्त बचाने के लिए कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट तो आपके सामने ही बनाया जाएगा, तो लिहाजा इसमें कोई रिगिंग का या इस तरह के कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप सिग्नेचर कर दें तो उसके बाद रिज़ल्ट जो भी होगा वो आपके सामने ही बनेगा, तो उसमें कोई किसी किस्म की कोई हैंकी फैंकी नहीं होगी। तो वो पोलिंग एजेंट्स की भी बड़ी सादगी देखी है कि उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात मान ली, मान के यकीनी तौर पर सईद बलोच हम कह सकते हैं कि सादगी देखी है। लेकिन जो इलेक्शन लड़ रहा है, जिस कैंडिडेट को यहाँ पर शुकूक शुबहात होंगे, मेरे ख्याल की को इतनी सादगी से तस्लीम नहीं करेगा। उसके लिए ये खासा पेचीदा मसला है। अपने व्यूअर्स को एक दफ़ा फिर से बताते चले कि जो ही 5 बजे उसके बाद वोटिंग के अमल को बंद कर दिया गया है। तमाम तर पोलिंग स्टेशन से जो खबरें हमें मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि इस वक्त गिनती का अमल शुरू हो चुका है। DI खान की एक पोलिंग स्टेशन की इस वक्त फुटेज आपके सामने पेश कर रहे हैं, जहां पर इस वक्त खवातीन जो वोटर्स हैं उनकी वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है और इस वक्त वोट गिनती किए जा रहे हैं। और यही सूरत हाल हमें मुख्तलिफ हलकों से भी आ रही है। आज 21 हलकों के लिए इंतखाब हुआ है और इस ज़िमनी इंतखाब में मुसलसल जो सूरत हाल रही है, और अपने व्यूअर्स को ये बताते चलें कि नताइज का सिलसिला जो है वो कंपाइल होना शुरू हो चुका है और आज न्यूज़ जो है वो तमाम नताइज को हासिल भी कर रहा है। लेकिन आज न्यूज़ अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियों को मद्देनज़र रखते हुए और उन्हें मलहूज़ खातिर रखते हुए अपने रिजल्ट्स जो आएंगे गैर सरकारी गैर हतमी, उनको 6 बजे के बाद ही अनाउंस करना शुरू करेगा। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शंस हैं कि 1 घंटे का वक्फा होना ज़रूरी है। लेकिन अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि आज न्यूज़ को नताइज मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। जिस तरह सादिया ने भी कहा कि आज न्यूज़ अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हुए और जो इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शंस हैं उन्हें फॉलो करते हुए अपने नाज़रीन को हम 1 घंटे बाद ही तमाम तर जो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा होगा वो शेयर करेंगे। 5 बजे के बाद वोटिंग का वक्त ख़त्म हो चुका था और वोटिंग के वक्त ख़त्म होने के बाद पोलिंग स्टेशंस के अंदर जो लोग मौजूद थे उन्हें ये ज़रूर मौका दिया गया कि वो अपना वोट कास्ट कर लें, और जहां जहां वोटिंग मुकम्मल हो गई वहां पोलिंग ख़त्म होने के बाद काउंटिंग का मरहला भी शुरू हो चुका है।
बिल्कुल, सलीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर, उनसे भी तफसीलात हासिल कर रहे हैं। सलीम शेख, एक तो इस वक्त जानना चाहते हैं कि चूंकि वोटर्स टर्नआउट खासा कम रहा है आज, ऐसे में क्या आपको लगता है कितना वक्त दरकार हो सकता है वोटों की गिनती को मुकम्मल करने के लिए? दूसरा, सेफली जानना चाहेंगे कि कितना वोटर टर्नआउट रहना चाहिए ताकि इस जो आज का ये ज़िमनी इंतखाब था 21 हलकों का, इसको एक्सेप्टेबल समझा जाए, क्योंकि एक दो जगहों से तो बल्कि 3 से 4 पोलिंग स्टेशन से तो ये भी पता चला कि वोटर्स टर्नआउट 15% से भी कम रहा। जी देखिए, जो टर्नआउट ज़िमनी इंतखाबात में तो हमेशा ही ज़रा कम आता है, लेकिन इस बार जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है वो तमाम ज़िमनी इंतखाबात से काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आ रहा है। और उससे जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है उसकी वजह शायद यही है कि एक तो इतवार का दिन था और लोगों ने कोई ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट नहीं लिया अपने वोटिंग के हवाले से। और दूसरी बात जो आपने की है कि इसके जो नताइज वो कितनी देर तक आ सकते हैं, तो अगर जितना टर्न आउट है उससे तो बज़ाहिर ये लगता है कि 5 बजे जो अगर वोटिंग का टाइम ख़त्म हुआ है और अगर किसी एक दो जगह पर 2-4 वोटर हों भी तो 5:15 तो 5:30 बजे तक जो है वो वोटिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा। और फिर तकरीबन जो है वो 7 बजे तक मेरा अपना ख्याल है कि इसकी वोटिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो जाना चाहिए। और जो आरओज़ के दफातर में जो फॉर्म 45 लेके जाने वाली टीम है, फिज़िकली भी लेकर जानी अगर उसको चाहे तो वो मैक्सिमम 9 बजे तक जो है वो टीम लेकर जा सकती है, क्योंकि लाहौर के सिर्फ 5 हलके हैं और कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है। अगर एक किसी हलके का रेडियस भी अगर हम देखें तो वो किसी का कोई 4 किलोमीटर से ज़्यादा रेडियस नहीं बनता, क्योंकि एक कौमी असम्बली का हल्का है और 4 जो सूबाई है, और सूबाई हलकों का जो रेडियस है उनका वो कम होता है और कौमी असम्बली का ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन वो भी फिर भी मेरा ख्याल है कि 4 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है आरओ के दफातर से। तो अगर 9 बजे तक अगर हम मुकम्मल मार्जिन भी दे दें तो 9 बजे तक जो है वो फॉर्म 45 लेकर जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर आरओ के दफातर में जा सकते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि ये वाकई 9 बजे तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते। जिस तरह बता रहे हैं कि 9 बजे का वक्त मैक्सिमम हो सकता है क्योंकि वोटर्स टर्नआउट कम रहा है और इस हद तक 9 बजे तक तमाम रिजल्ट्स हो जाना चाहिए। आपसे आगे